Hello everyone. Once again, I Faizia Khidwai welcome you all to Balaji online classes. Today I am back with another chapter of class 7th history. Chapter number is 3 and chapter name is the Delhi Sultanate. Now, the first question that arises is what is Delhi Sultanate? And without wasting any time, I am giving you the answer here. The political formation that consists of 5 dynasties, that is the Slave dynasty, Khilji dynasty, Lodi dynasty, Sayyid dynasty and Tughlaq dynasty. These dynasties together form the Delhi Sultanate. And this political formation ruled India from about 1206 CE to 1526 CE. And in this chapter, we are going to study these 5 dynasties briefly. The first dynasty is the Slave dynasty. Now, why this dynasty is called as Slave dynasty? इसको Slave dynasty क्यों कहते हैं? इसके जो rulers थे, जो early rulers थे, वो slaves थे. इसलिए इसको Slave dynasty कहते हैं. Those rulers were called as Mamluk. Mamluk was an Arabic word which means owned. That's why this dynasty is also called as Mamluk dynasty. The founder of this dynasty was Qutbuddin Aibak. He was one of the generals, or you can say slave, of Muhammad Ghori. Muhammad Ghori, in the previous chapter I have discussed about Muhammad Ghori. He was the ruler of Ghazni who invaded India, and on his way back he left his generals to look after the invaded territories, and Qutbuddin Aibak was among them only. And these slaves, they become such rulers and they achieve such high position because of their capabilities and hard work. Qutbuddin Aibak was succeeded by Iltutmish. Iltutmish was his son-in-law. He took the throne after defeating Aibak's son. Iltutmish was one of the greatest ruler of this dynasty because he was able to not only conquer Rajputs areas that were the Malwa, Ujjain, Bihar, Bengal, and also repulse the Mongol attack which was led by Genghis Khan. Iltutmish also completed the structure that is known as Qutub Minar, which was started by Qutbuddin Aibak. He was succeeded by Razia Sultan. Razia Sultan was the third ruler of this dynasty. And being a woman, she left her female attire and veil and led the army and successfully established her kingdom. But उस टाइम पे एक women rule करे पूरे nation को, that was something which was not digested by our male society, and therefore they conspired against her, and through a conspiracy they killed her in a battle in Delhi. ये जो रजिया सुल्तान थी, जो कि एक विमेन थी और उस टाइम पे एक विमेन रूल करे, दैट वाज नॉट एक्सेप्टेड बाय द पीपल एज इट वाज अगेंस्ट द कस्टम्स. तो उस टाइम पे चहलगानी एक कमेटी होती थी 40 पावरफुल पीपल की, विच वॉज बेसिकली फॉर्म्ड बाय द इल्तुतमिश. बट आफ्टर इल्तुतमिश डेथ ये जो चहलगानी कमेटी थी ये डिसलॉयल हो गई, एंड दिस कमेटी वेंट अगेंस्ट रजिया सुल्तान एंड conspired her and then murdered her. Razia Sultan was succeeded by his brother, but he was a very weak ruler and he only works on the advice of his advisor who was Balban. After his death, Balban took over the throne. Therefore, the fourth ruler of this dynasty was the Ghayasuddin Balban. And Ghayasuddin Balban continued Iltutmish's policy of suppressing revolt and strengthening his empire. And to strengthen his position, he also adopted certain measures. What were those measures? Those measures were that he started the practice of sijda. एक उसने प्रैक्टिस स्टार्ट की सिजदा की. सिजदा में क्या होता था, जो नॉबल्स होते थे उनको अपनी नीज पे बैठकर अपना जो सर है उसको झुकाना पड़ता था. they had and their head should touch the ground, और in this way they have to salute the sultan. तो इस तरह से जो नॉबल्स की जो पोजीशन थी वो कहीं ना कहीं डिग्रेड हुई. The second was the nobles were also not allowed to drink or to attend parties, and
उसकी जो कोर्ट में बहुत ही स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन लॉज अडॉप्ट किए गए कि उसके कोर्ट में किसी को भी परमिशन नहीं थी ना ही हंसने की और अननेसेसरी ना ही स्माइल करने की और ना ही हंसने की. He also centralized the administration and recognized his army. इससे क्या हुआ, एक डिसिप्लिन हो गया, एक फियर हो गया अमंग लोगों में, एक फियर जनरेट हो गया उसके रिगार्डिंग. और जो भी इस इन दिस वे जो भी उसके अगेंस्ट जाने की कोशिश करता था या जो भी उसके अगेंस्ट जाने की प्लानिंग करता था वो वहीं पे रुक गया. बिकॉज ऑफ दैट फियर वो कॉन्स्पिरेसीज, वो रिवॉल्ट्स वहीं पे दब गई. तो इन दिस वे ही managed to suppress all the revolts that could have come against him. Then after his death, जो उसके successors थे, they were very weak and ultimately this dynasty collapsed and a new dynasty began, that was the Khilji dynasty. And the first ruler of this dynasty was Alauddin Khilji. Alauddin Khilji built a huge empire and is one of the powerful ruler and also regarded as a very shrewd administrator and a brilliant military general. He conquered many territories in quick succession. उसने बहुत जल्दी बहुत सारी territories जो है वो conquer कर ली. Also जो उसके जो kingdoms थे, जो कुछ ऐसे kingdoms थे जिसको उन्होंने war में हराया था, उन किंगडम्स का वो क्या करता था कि उन्हें उनकी टेरिटरीज वापस दे देता था. बट इन रिटर्न दे हैव टू रिमेन लॉयल टू द किंग एंड ऑल्सो दे हैव टू पे अ ट्रिब्यूट टू देम, दैट फिक्स ट्रिब्यूट. तो उससे क्या होता था, जो उसकी जो वेल्थ थी वो इंक्रीज हुई. देन अलाउद्दीन एडमिनिस्ट्रेशन. अब अलाउद्दीन के जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो बहुत ही स्पेशल टाइप ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन था. एंड उसने बेसिकली जो है अपनी पावर को और अपनी वेल्थ को मेंटेन करने के लिए और बढ़ाने के लिए बहुत सारे मेथड्स अडॉप्ट किए. एक मेथड ये था कि उसने क्या किया, जो मार्केट थी उसको 3 टाइप्स में डिवाइड कर दिया. 3 मार्केट्स होती थी. पहली मार्केट क्या होती थी, हॉर्सेस की होती थी, स्लेव्स की होती थी और कैटल्स की होती थी. ठीक है. दूसरी मार्केट जो होती थी वो फूड ग्रेन्स की होती थी और जो तीसरी मार्केट होती थी वो जो कॉस्टली आर्टिकल्स होते थे, जैसे कि इम्पोर्टेड जो चीज़ें होती थी, फॉर एग्जांपल इम्पोर्टेड क्लोथ, उसकी होती थी. और ये सारी मार्केट्स को होर्डिंग्स लगाने की यानी कि प्रमोशन करने की कोई भी परमिशन नहीं थी. एंड ऑल्सो एक स्ट्रिक्ट वॉच रखा जाता था ओवर द बाइंग एंड सेलिंग. एंड कोई भी अगर चीटिंग करते हुए पाया जाता था तो दैट पर्सन वॉज स्ट्रिक्टली पनिश्ड. ऑल्सो सेकेंड स्टेप क्या था कि जो लैंड था दैट वॉज अ वेरी इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ रेवेन्यू. देयरफॉर उसने क्या किया था, उसने जो लैंड का जो रेवेन्यू था उसको एक फिक्स अमाउंट पे कर दिया था कि जो भी पीजेंट्स जितना भी प्रोड्यूस करेगा उसका हाफ अमाउंट उसको एज अ रेवेन्यू किंग को देना होगा. एंड दिस रेवेन्यू वॉज कलेक्टेड बाय स्पेशल ऑफिसर्स हु वर कॉल्ड एज अमीर्स. देन आर्मी को इम्प्रूव करने के लिए उसने क्या किया, आर्मी को इम्प्रूव करने के लिए उन्होंने सोल्जर्स की सैलरी को फिक्स करा. प्लस जो हॉर्सेस होते थे उनको ब्रांडेड कर दिया, मीन्स उनमें एक थप्पा लगाया अपना. ऑल्सो जो हॉर्सेस होते थे उनका एक प्रॉपर अटायर होता था, जिससे क्या होता था कि वो मिक्स ना हो पाए, सब्सटीट्यूट ना हो पाए. So these were certain measures that were adopted by Alauddin Khilji to strengthen his position. Then after Khilji dynasty came the Tughlaq dynasty. And Tughlaq dynasty was founded by Ghiyasuddin Tughlaq and he was succeeded by his son Muhammad bin Tughlaq. So in this chapter we are going to study about Muhammad bin Tughlaq. मोहम्मद बिन तुगलक की 2 बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स थे जो बेसिकली उसके डाउनफॉल के लिए रिस्पॉन्सिबल थे. दो ही वॉज अ वेरी ब्रिलियंट मैन, बट जो उसके आइडियाज थे उनमें प्रैक्टिकलिटी ना होने की वजह से उसे बहुत सारा जो है खामियाजा भुगतना पड़ा एंड उसकी जो पोजीशन थी वो नीचे आ गई. फर्स्ट जो उसका सबसे बड़ा जो बैकड्रॉप हुआ दैट वाज द शिफ्टिंग ऑफ द कैपिटल. व्हाट ही थॉट, मोहम्मद बिन तुगलक थॉट दैट उसका जो एम्पायर था वो बहुत ही लार्ज था, बहुत सारी टेरिटरीज उसने कॉन्कर करी हुई थी, तो उसको उस पूरे एंटायर किंगडम को मैनेज करना था.
तो ही थॉट कि अगर वो अपना कैपिटल दिल्ली से दौलताबाद शिफ्ट कर देगा तो वो नॉर्थ और साउथ इंडिया पर दोनों पर अच्छी तरह से कंट्रोल कर सकेगा। एंड इन दिस प्रोसेस क्या हुआ कि उसने अपना कैपिटल शिफ्ट किया, और इस जो प्रोसेस में जो उसकी जितनी भी प्रजा थी, जो लोग थे, उन लोगों को भी शिफ्ट होना पड़ा। तो उसमें काफ़ी लोग मर गए, बहुत सारे बच्चों को ह्यूमिलेट किया गया, औरतों को ह्यूमिलेट किया गया। तो इससे उसकी जो जो एक डिसकंटेंट टाइप का हो गया पीपल के दिल में अगेंस्ट हिम। और जब दौलताबाद वो पहुंचा, देन ऑल हिज प्लान बैकफायर। Why? Because he was not able to deal the invasion that was led by the Mongol. जो मंगोल का इन्वेजन था उसको वो सही से मैनेज नहीं कर पाया, एंड देन ही डिसाइडेड अगेन टू शिफ्ट हिज कैपिटल फ्रॉम दौलताबाद टू दिल्ली। और जब ये फिर से रिवर्स हुआ तो इस प्रोसेस में भी बहुत सारे लोग मरे, और इसकी वजह से क्या हुआ, उसे बहुत ही ह्यूज लॉस हुआ। The second step that backfire was the token currency. क्या किया उसने, उस टाइम पे गोल्ड और सिल्वर कॉइन्स थे, उसने क्या किया, उसने ब्रॉन्ज और कॉपर के कॉइन्स भी इंट्रोड्यूस कर दिए, बट जो वैल्यू थी गोल्ड और सिल्वर की और कॉपर और ब्रॉन्ज की वो उसने सेम रखी। इससे क्या हुआ, और जो डिजाइन्स थी कॉपर कॉइन्स की वो बहुत ही ज्यादा सिंपल सी थी, तो उससे क्या हुआ, इलीगली लोगों ने अपने घरों में वो कॉइन्स बनाना स्टार्ट कर दिए, और इसकी वजह से क्या हुआ, जो मार्केट वैल्यू थी वो गिर गई, एंड उसको अपना ये प्लान भी विथड्रॉ करना पड़ा। तो दीज द टू थिंग्स दैट बेसिकली लेड टू द डाउनफॉल ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक। द सेकेंड रूलर वॉज फिरोज शाह तुगलक। Firoz Shah Tughlaq was succeeded. Muhammad bin Tughlaq was succeeded by Firoz Shah Tughlaq, and he probably learned many lessons from his cousin. Like मोहम्मद बिन तुगलक का कजिन था फिरोज शाह तुगलक, और मोहम्मद बिन तुगलक का एडमिनिस्ट्रेशन उसने देखा था, तो उसने उसकी मिस्टेक्स को नहीं दोहराया, व्हाट ही डिड। और उसके कहा जाता है कि उसका जो एम्पायर था, उसके एम्पायर के टाइम में कोई भी प्रॉपर रेवेलिंग नहीं हुआ था। जो भी लोग थे दे ऑल वर हैप्पी विद हिम, जितने नॉबल्स थे दे ऑल वर हैप्पी विद हिम। और उसने जो है इरिगेशन, उसने जो ह्यूमन, जो वहाँ की प्रजा थी उनके वेलफेयर के लिए बहुत काम किया। लाइक इरिगेशन सिस्टम्स वर इम्प्रूव्ड, एंड ऑल्सो न्यू कैनल्स एंड wells were set up. He also built many new towns, one such as Jaunpur and Firozabad. Also, he opened schools and madrasas to improve the education system. और जो रेवेन्यू कलेक्शन था उसमें भी बहुत सारे चेंजेस उसने किए। ऑल द एक्स्ट्रा टैक्सेस वर अबॉलिश्ड, एंड ओनली दोज टैक्सेस वर कलेक्टेड विच वर देयर इन द इस्लामिक लॉ। तो इस तरह से इसकी जो एक एडमिनिस्ट्रेशन था दैट वाज क्वाइट गुड, और इसके एडमिनिस्ट्रेशन में इकोनॉमी जो है वो काफी अच्छी फ्लरिश हुई। देन कम्स द अदर डायनास्टी, दैट इज द लोधी डायनास्टी. Lodhi dynasty was founded by Behlol Lodhi, who ascended the throne in 1451 CE, and he ruled approx 39 years, and his most important achievement was the conquest of Sharqi kingdom of Jaunpur. Sharqi kingdom का जो उसने जो कॉन्कर किया, that was his greatest achievement. Sikandar Lodhi was the greatest of the Lodhi ruler. Now जो दूसरे आए who was the Sikandar Lodhi, and he was also one of the greatest ruler of Lodhi dynasty. He also conquered Jaunpur, Bihar and Ganga Valley, and he shifted his capital to Agra. उसने अपने कैपिटल को आगरा शिफ्ट किया, और इसने भी बहुत सारे ऐसे मेजर्स उठाए, ऐसे स्टेप्स लिए जिससे जो एग्रीकल्चर है और जो इकोनॉमी है वो इम्प्रूव हो सके हमारी कंट्री की। Then after his death, जो इसके जो नेक्स्ट रूलर आया was the इब्राहिम लोधी। लेकिन इब्राहिम लोधी was not able to successfully run his kingdom, and जो उसके अपने अंकल थे जो उस टाइम पे गवर्नर थे पंजाब के, whose name was दौलत खान लोधी, he cheated him and he invited Babur. Babur was the ruler of Kabul at that time, to invade India and threw Ibrahim Lodi out. And Babur did the same. He invaded India and defeated Ibrahim Lodi, and in the first battle of Panipat.
फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत जो हुई थी वो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुई थी, जिसमें इब्राहिम लोदी हार गया था। और इस तरह से जो दिल्ली सल्तनत थी दैट केम टू एन एंड एंड मुगल एम्पायर began in India. So, and also the last topic of this chapter is administration in the Sultanate. अब सल्तनत जो थी दिल्ली की उस टाइम पे जो उसके मेन पॉइंट्स थे एडमिनिस्ट्रेशन के, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस दिस। तो इस टाइम पे जो दिल्ली सल्तनत थी उसमें सुल्तान जो था दैट वाज ही वाज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन। सुल्तान सबसे ज्यादा इम्पॉर्टेंट पर्सन था, ठीक है। ही मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर एंड ही वाज आल्सो द चीफ कमांडर ऑफ द आर्मी। Then there were wazirs and deputy who look after the revenue department. Then there was Aris a Mumalik who looked after the needs of the army. जो भी आर्मी की नीड्स होती थी that was fulfilled by some special officers जिनको हम कहते थे अरीज ए मुमालिक। उसके बाद बरीद ए मुमालिक होते थे जो हेड होते थे स्टेट के, और जितने भी स्टेट के अफेयर्स होते थे वो मैनेज करते थे। उसके बाद जो एम्पायर होता था, जो दिल्ली सल्तनत के टाइम पे जो एम्पायर होता था वो डिवाइडेड होता था प्रोविंसेस में, जिनको हम कहते थे प्रोविंस या फिर सूबास। और हर इस प्रोविंस का एक गवर्नर होता था जो उसकी देखरेख करता था। उसके बाद ये जो सूबास होते थे इनको हम डिवाइड करते थे शिक्स में, और शिक्स को परगना में डिवाइड करते थे, और फिर इन परगना को विलेज में डिवाइड करते थे। विलेज का एक हेडमैन होता था, ठीक है। परगना जो होता था उसका हेड जो होता था वो आमिल होता था, और जो शिख होते थे उसका जो हेड होता था उसको हम कहते थे शिकदार। और इस टाइम पे जो नोबल्स होते थे उनकी भी बहुत ही एक रिस्पेक्टफुल पोजीशन होती थी, उनकी फिक्स्ड सैलरीज होती थी, जो भी रेवेन्यू कलेक्ट किया जाता था उन रेवेन्यू में से उन्हें दिया जाता था। सो दिस वॉज समथिंग दैट वॉज अबाउट दिल्ली सल्तनत। इट वॉज अ ब्रीफ डिटेलिंग। And with this note, your chapter ends here. So please do a proper reading of this chapter. Please learn all the difficult words, all the important dates that are written in your chapter, also the important battles and the important achievements of the rulers. And your notes, you can get your notes through School Mitra app. Please download those PDFs and complete your work. And meanwhile, stay safe and take care of yourself. Thank you.